we have the sexual abuse or the sexual harassment. So अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, that is going to be of the sexual harassment. So sexual harassment के बारे में बात करने से पहले बेटे आपके लिए जरूरी है कि आप लोग ये जानो कि sexual harassment actually है क्या. You know, sexuality का नाम सुन के ना हम लोगों की यार टांगों से जान निकल जाती है. कुछ लोगों के मुंह पे not getting to anyone, I'm not getting personal to anyone. हम लोगों के चेहरे पे वल्गर स्माइल आ जाती है. हम लोगों की एकदम से हंसी छूट जाती है एशियंस वाली, जो कि हर बात भी ऑलमोस्ट छूट जाती है रिक्शा स्टार्ट की तरह. ठीक है. Then some of the people say, oh my God, ये गंदी बात है, इस बारे में बात नहीं करनी. What is sexuality? The most common thing जो कि मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स, फौजा सरा सबके साथ एक जितनी ड्वेल करती है. So for knowing what is sexual harassment, that is very necessary that you should know that what is the sexuality or sexual sense. And I have defined here for you in a very, very simple words. ये definition भी मेरी अपनी है. The mental, behavioral and spiritual pattern of any individual or an individual on the basis of how they wear their gender, number one. Number two, and on the basis of same pattern, they define their intimacy limits. मैंने यहाँ दो बातें की और बहुत साफ साफ मेरे ख्याल में बातें. एक ये कि आप ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर या अपने रवैये के तहत अपने जेंडर को कैसा परसीव कर रहे हो. अब अगर मुझसे कोई आके ये कहता है कि ट्रांसजेंडर्स यानी कि जो ख्वाजा सरा होते हैं, जिन्हें हम लोग पंजाबी में हिजड़े या खुसरे भी कहते हैं, ठीक है, अगर हम ये कहें कि वो लोग वो मखलूक पैदा है और उनका जेंडर नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, यू हैव अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. दे हैव अ जेंडर. बच्चे, बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी एक मेल या फीमेल की तरह गुजार रहे हैं, and you don't even know that they are never going to get married or get married and never tell to public. To their spouse they will be telling, but to public they are never telling that they are the proper male or the female. You never know. So transgenders सिर्फ वो नहीं होते जो हम लोगों को तालियां बजाते हुए रोड पे नजर आते हैं. वो सिर्फ उनकी वो कैटेगरी है जिसे आपने फील कराया कि वो पुअर फिट है तो वो घरों से निकलकर सड़कों पे आ गए. उनके लिए घरों में जगह नहीं बची तो वो सड़कों पर आ गए. They are only one category of those transgenders. Otherwise, transgenders सिर्फ वो लोग हैं जिनकी reproductive organs किसी एक जेंडर में स्पेसिफिकली ग्रो नहीं करते. Otherwise, mentally, behaviorally or spiritually, the previous slide please, the previous slide, they are also having a gender. Some of them choose themselves as male, some of them choose themselves as females. Secondly, on the basis of same sexual sense, you're wearing off the gender you're wearing off, आप अपने do's and don'ts define कर लेते हो. क्यों ऐसा होता है? प्यारी प्यारी बेटियों से मेरा सवाल है कि जब आप गुजर रहे होते हो मार्केट से, कोई आपको धक्का मार के गुजर जाता है तो उसको मोटी सी गाली निकालने का दिल चाहता है. ऐसे ही बाज़ दफ़ा आप इमेजिन करते हो कि आपने अपना छोटा सा 1.5 किलो का या पौने किलो का थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा. Although खुदा न खास्ता might be though it was not sexual at all, but you hated it, you felt it, and you want to react because at that time it didn't affect your body maybe, but it affected your limits. और आपकी लिमिट्स डिफाइन थी कि आप किस बंदे के साथ कितना ज्यादा इंटीमेटल टच रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते. When I'm saying intimatal touch, do you get what I'm saying? Your love boundaries, the boundaries of touching, the boundaries of romance, the bonding of having a sexual relation, that is the intimatal limit. तो आपने अपने जेंडर को परसीव कर लिया, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी. सेकेंडली, अपनी सेक्सुअल लिमिट्स मेंटेन कर ली. That is a sexual sense. So now coming to the next slide, we can see that sexual harassment is then what. अब हमारे लिए समझना easy हो जाएगा कि the verbal and non-verbal use of power to offend and damage or make someone feel vulnerable regarding their sexual sense is called harassment. कोई भी non-verbal या verbal ऐसा action
जो दूसरे इंसान के सेक्सुअल सेंस को डैमेज करे, हर्ट करे या वल्नरेबल करे, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट. देन we can see what does sexual harassment look like. ठीक है? Not every single thing is going to be a sexual harassment, but not every single thing is going to not be a sexual harassment. Firstly, we can see that there are a variety of circumstances जिसमें अगर हम लोग प्रोफेशनल लिहाज से देखें तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि मेकिंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एडवांसमेंट डिपेंडेंट ऑन सेक्सुअल फेवर्स ईदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली. बेटे आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में हो. जो प्रोफेशंस में नहीं है वो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है वो घर में है जिनके साथ दूसरे लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है. सो समहाउ हम किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में, फैमिली इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, सो हम लोग किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में होते हैं. जब उसके एम्प्लॉयज़ या उसके डायरेक्टर्स या उसके हेड्स आपके लिए कंडीशन ऐसी बना दे कि एट दैट टाइम यू हैव टू गेट इनटू सम सेक्सुअल फेवर्स विद देम, अदरवाइज दे विल मेक योर लाइफ अ हेल एट दैट प्लेस, दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. देन द फिजिकल एक्ट्स ऑफ खुदा न खास्ता सेक्सुअल असॉल्ट, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट. वो सबसे मेरे ख्याल में विजिबल चीज़ है. रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, नंबर मांगना, नंबर पर बात करना, फिर रात में बात करना, फिर आपके साथ कुछ ऐसी इमेजरी, उसके बारे में हम लोग बात करने लगे हैं. आप स्टेप बाय स्टेप दूसरे को इस लेवल पे ले आओ कि वो आपके साथ अपनी सेक्सुअलिटी शेयर करें. सेक्सुअल फेवर्स मांगना, दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट. एंड इफ समवन, वो भी हम डिस्कस करेंगे, समवन नियर वन इज ऑल्सो डिस्कसिंग दैट और दे आर आस्किंग फॉर दैट फेवर, इट्स स्टिल रॉन्ग. Then the verbal harassment of the sexual nature, including the jokes referring to the sexual acts or the sexual orientation. 90% लोग इस चीज का शिकार हैं कि पहले उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है into sexual jokes and then they get habituated to it, then they understand it's normal and then they get into the harassment. First they are of the victim side and then they become the oppressor without even knowing that it is a harassment. Then we can see that the unwanted touch or the physical contact, जो हम लोगों ने भी बात की मार्केट में, even it was if खुदा न खास्ता not on the very very sensitive parts, private parts में नहीं भी था, but the physical contact जो आपको unwanted था, कंधे पे हाथ रख लेना, साथ से गुजरते हुए मार देना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, हाथ पकड़ लेना, खाम के हैंडशेक जो दूसरे को नहीं चाहिए. हम लोग कंसेंट की भी बात करेंगे, जो कंसेंशुअल नहीं है उन चीज़ों के थ्रू आप फिजिकल एडवांसमेंट्स करते हो. देन वी कैन सी द अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, ऑब्वियसली द डिस्कसिंग ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस, स्टोरीज, प्रैक्टिसेस एट वर्क, स्कूल और इन अदर इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस. देखो प्राइवेट लाइफ है ना, किसी एक चीज़ के, किसी एक बंदे के साथ डिस्कस हो सकती है, वो पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकती, वो 10 बंदों के सामने डिस्कस नहीं हो सकती. ये चीजें ओपन होने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच प्राइवेट. और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मौजूदगी में इस किस्म की डिस्कशन को हमेशा इग्नाइट करता है, अगर आपको लग रहा है कि आप इससे जितना डिस्कम्फर्ट होते हो दूसरा बंदा उस चीज से उतना ज्यादा एंजॉय कर रहा है, एग्जैस्परेट कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउ इट्स सेक्सुअल हरासमेंट एंड यू हैव टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट. इवन इट्स फ्रॉम द फैमिली साइड, इट्स फ्रॉम द एजुकेशनल साइड और इट्स फ्रॉम योर प्रोफेशनल साइड. Then we can see feeling pressured to be engaged with someone sexually. कोई आपको डायरेक्टली नहीं कहता, उसने आपको 1 से 2 दफा डेट की ऑफर की या उसने आपसे कॉन्टेक्ट शेयर करने की बात की, लेकिन जब आपने नहीं किया तो then you will feel that constantly they are pressuring you with their indirect behavior and they are always being rude to you जब तक आप उनसे बात करना शुरू नहीं कर देते. So what is this? This is actually you're being pressured to come indirectly into the same favor zone जिसमें वो आपको लाना चाह रहे हैं to fulfill their demands. Then exposing oneself for performing sexual acts on someone, obviously that is a sexual harassment. We are all grown up to understand it. The unwanted sexually explicit photos, emails or text messages, even in the friends of the same gender, it is sexual harassment. Then we can see that the Bureau of Justice of Statistics in the female violence or female victims of sexual violence in the 2013, हमारे पास अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जो कि उनके ब्यूरो की परमिशन के साथ उनके कैंडिडेट्स के साथ की गई थी.
हम लोगों ने वहां पे वल्नरेबल एरियाज देखे थे इंटरनेशनल लेवल पे। यू विल बी शॉक्ड, फिगर्स आपके सामने। 55% of the sexual harassment, specifically the females, and with my humble experience, I would say males as well, they face it from the home or the premises near the home. 15% of that is being faced in the public areas, open public areas. The total cases, out of which the 12% are seen around or near the relatives' homes. Then we can see that 10% sexual harassment cases are being enclosed in the public areas, but enclosed that include the parking lots, the garages, the lifts, the public washrooms, and the 8% of them are being noticed in the school properties. Very, very significant point. 55% of the cases taking place in the homes or near the homes. Why? Number one, you don't expect it there. Home is the safest place. You see, there is a heart inside that home, home sweet home. We never expect actually that someone is going to make us feel vulnerable there. It is the safest place we have, God, in the whole earth, right? So, क्योंकि जो harasser है, ये जो abuser है, उसको ये बात इतने ही अच्छे तरीके से पता है, जितने अच्छे तरीके से आपको पता है कि you would never mistrust them. They take the benefit of that. हम लोग इसको आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे. And second point, why it is most vulnerable in the home settings is because you cannot report it. Many of the people who are actually the abusers they are from the home categories, from the home domain. They know this thing that if you are going to tell it to someone, might be that they are not going to even believe it. And if they're not going to believe it, the person is off, right? They're off with their game. So, White Ribbon एक organization है और वो अपने जो रिसर्च करती है वो करती है वॉ के ऊपर, यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर. उनके कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे हम बहुत जल्दी जाएंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. देखें, मोटर व्हीकल से सानिया हुआ है, मेरे ख्याल में आप सबको इस बारे में आइडिया है, ठीक है. उसके बाद लोगों में हरासमेंट की अवेयरनेस आई. ज़ैनब कसूर कत्ल केस एंड आयशा कसूर कत्ल केस, 2 बच्चों की मौत की खबर सोशल मीडिया के थ्रू, एंड आई एम फीलिंग वेरी मच पिस्ड ऑफ बाय यूजिंग दिस वर्ड्स, बट आई हैव टू डू इट, दैट सेक्सुअल हरासमेंट एंड म्यूटिलेशन being hyped on the social media, reaching to the public media, was the only reason why people took an action. And they woke up that this thing is happening. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आयशा और ज़ैनब के केस से पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नहीं हो रहा था? क्या मोटरवे की सानिया से पहले ये वाकयात नहीं हुए थे? क्या इस सानिया के बाद ये वाकयात होना कंप्लीटली रुक जाएंगे? सो आपको ये बात आइडिया होना चाहिए कि बच्चे, आप लोगों के पाकिस्तान में इस चीज की रिसर्च में भी डिले होता है. हमारे पास जो लास्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं वो 2004 से 2016 तक के हैं. राइट नाउ वी आर इन 2020, राइट? अभी भी हम लोग 4 साल पीछे हैं. सो हमारे पास जो जनरल फैक्ट्स हैं मोटरवे सानिया के और कसूर में होने वाली म्यूटिलेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलावा भी, नाउ देयर इज अनदर थिंग, दे आर जस्ट रिपोर्टेड. यानी कि जो अनरिपोर्टेड डायलेमा है, जो अनरिपोर्टेड साइड है, द फेस दैट इज नॉट बीइंग शेयर्ड और रिवील्ड, वी डोंट इवन नो अबाउट इट. तो रिपोर्टेड केसेस में वी हैव 4734 केसेस ऑनर क्राइम्स, यानी कि गैरत के नाम पर कत्ल कर देना या बंद कर देना, ये जला डालना. इन चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि 15,222 केसेस हमारे पास आ रहे हैं इन 12 सालों के. बर्निंग केसेस हमारे पास हैं जिसमें जला डालते हैं पूरा का पूरा 1,535. देन द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, वी हैव 1,843 केसेस रिपोर्टेड. सुसाइड केसेस, आइए सुसाइड कौन सी है? जो ऑब्वियसली उस अब्यूज या उस सारी की सारी ट्रेजेडी के हो जाने के बाद
या तो खुद ही इतने साइकोलॉजिकल डिस्पेयर में चले जाना कि उससे कोई हल नहीं है, या फिर जब तक हमारी आवाज नहीं आ जाती है माइक के अंदर, कैन यू पीपल हियर मी, एम आई ऑडिबल टिल द एंड? यस, ऑलराइट। सो ऑलराइट, सो हमारे पास ये सारे केसेस सुसाइड के वो वाले हैं जो विक्टिम्स बनकर, विक्टिम्स फील कर कर, विक्टिम्स के तौर पर जिंदगी गुजारते गुजारते जिंदगी की बाजी हार जाते हैं by giving it a letter that I quit. Then we see that the woman kidnapping is 5,508 cases. There are women kidnappings in these 12 years. The next thing we are going to see, segregation अगर की जाए तो पंजाब में हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जाते हैं, जो रेप केसेस हैं खुदा अल्लाह रहम फरमाए, दे आर 2720 इन 2015 ये रिपोर्ट हो गए थे। The cases of honor killing in Punjab are 173. The cases of the next thing, acid throwing, the cases are 22. The burning cases are 35, and the cases of getting beaten badly are 588. इसके बाद अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो जो माज़ल्लाह गैंग रेप के और रेप के केसेस हैं, they were 32, reported cases were 32. Then the cases involving attempted rape, attempts जो की गई थी, they were reported as 20. The honor killings were 987, and the violence against women in KPK as per Peshawar they were 104, मर्दान में 35, कोहार में 14 और मानसरा में इन 12 सालों में ये केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। मानसरा में 11 केसेस हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में हमारे पास अगर हम देखें तो जो गैंग रेप और रेप के केसेस हैं, they were 344, honor killings were 860, incident of acid burning were 90, and the violence against women 535, and domestic violence के 481 cases हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं up till 2015। बलोचिस्तान में अगर हम लोग देखें तो 939 सोडोमी होता है, you know molest a person, you harass them, you give them assault and then you kill them. So that is 939. Burning cases were 143, domestic violence के 279. So these were the facts against the women. जो violence हम लोग women's के अंदर देख रहे हैं, women के अंदर देख रहे हैं। बच्चों के अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास साहिल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है व्हाइट रिबन की तरह जो साहिल बच्चों के लिए काम कर रहा होता है। उसमें 943 murders of the children were been reported in 2012. 8 साल पहले लास्ट रिसर्च में हमारे पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। 1170 इंजरीज थी, सोडोमी के केसेस 302 थे, 204 चाइल्ड ट्रैफिकिंग जिसे हम लोग स्मगलिंग कहते हैं या बच्चों के आज़ाद स्मगल करना कहते हैं। देन वी हैड फोर्स्ड मैरिजेस ऑफ चिल्ड्रन 410, देन 164 कारोकारी, यानी कि आप जब ब्लेम कर देते हैं और एक बंदे को आप एविडेंट हो जाते हैं उस बात पे कि येस दैट पर्सन इज कल्प्रिट इन सम सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसके बाद सेक्सुअल एक्ट, तो आप उसके बाद उनको उस चीज़ की सजा के तौर पे या तो कमरे में बंद कर देते हैं सारी जिंदगी के लिए या आप उनको स्ले कर देते हैं। 260 cases of the missing children, 407 sexual assaults, 547 torture cases of the children, 323 children suicide, and I think that is a point to be clicked. Bachche are the sign of hope. They are the sign of happiness. They are the sign of optimism. And if they are going towards suicide, can you just imagine what is going on? It is to be think about. 530 kidnappings and 175 बनी cases। बनी ये होती है कि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम पर्सन ए एंड ही इज़ द पर्सन बी और मैंने इनको मार दिया तो मेरे ख़ानदान से नो मैटर हाउ यंग देयर इज़ अ गर्ल, वहाँ पे उनके क्योंकि वो मर गए हैं, फोत हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं, तो उनके भाई या जो उनके कोई भी अनमैरिड या मैरिड रिप्रेजेंटेटिव है जो क्लेम कर देंगे,
तो यहाँ से मेरे खानदान से क्योंकि मैंने कत्ल किया था, तो उसकी पेमेंट प्राइस, उसका पे बैक वो बच्ची करेगी बाय गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन जो कि अलाइव है और क्लेम कर देता है क्लेमेंट के साथ। एंड नो मैटर अगर वो बच्ची 8 साल की है, 10 साल की है, 12 की है या 30 साल की है। दैट इज मनी एंड द केस इज रूल 176। तो सेक्शुअल हैरेसमेंट हमारे पास टोटल कितने टाइप्स की? वी हैव बाय नेचर, देयर आर सम सेग्रीगेशंस। I have already made this clear in my mind that when I am talking to you, I have to make it sure you know it by all the dimensions, right? So हमारे पास जो sexual harassment है, वो totally 2 जगह पे lie कर रही होती है। अगर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं आसान, क्या so that is by nature, and secondly we are going to see it by decorum. By nature जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, तो we can see the next slide as in non-verbal communication that can be direct or that can be indirect. I was going through a report of America जहाँ पे females जो कि working areas में employment में थी, when they were not responding to the sexual favors, तो उनके वहाँ से जो काम करने वाली tools हैं या जो उनकी office की accessories हैं या जो उनके so next public level पे जो harassment होती है उसमें क्या क्या चीजें जो आप देख रहे हो, they come into the category of harassment, and slightest with the action has to be taken. What I say, slightest with the action has to be taken. Why? Because obviously हर दफा आप खड़े होके today हम लोग self defense की training देखेंगे तो you cannot do it with a ready वाला, right? वहाँ पे आपकी अपनी जो publicity है वो खराब होना शुरू हो जाती है. You cannot just get into some gush with some shopkeeper always. But with your personality, we are going to learn those techniques. With your personality, you have to give them a message that you have just to find it out and you're done. You're not going to bear it. So in public harassment, we can see that there are always some verbal pushes, यानी कि commenting or singing or articulatory voices, अपने मुंह से कुछ voices निकालना, जो कि दूसरे बंदे को tease करे, asking for the contact number या indecency वाली बातें करना, ये सब कुछ वर्बल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे हम लोग देख रहे होते हैं कि हरासमेंट के साइंस हैं, मौजूद हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं। सेकेंडली नॉन वर्बल पुशेस में हमारे पास एलिवेटर आइज, जो कि हम एक तो हमारे टीचर जब हम लोग लेट आते हैं क्लास में तो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं और बंदे की सांस सूख जाती है, और दैट इज ओके बिकॉज टीचर के तौर पे हम सभी ये करें, चाहे हमारे पास ट्यूशन वाले बच्चे क्यों नहीं आते। लेकिन ये चीज एज अ टीचर एक स्टूडेंट के साथ तो ठीक हो सकती है अप टिल द लेवल जहां पे आपका सेक्सुअल सेंस डैमेज नहीं हो रहा। इंक्लूडिंग योर टीचर, any person at the public or some private way, if they are giving you that elevator eyes, that is not going to work. It is a form of harassment and you should be noticing it. Then we can see the facial expressions. Sometimes the people have अपने लिप्स की, अपनी आइज की, अपनी नोडिंग वो इस तरह से कर लेते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू वो दूसरे बंदे को हरास कर रहे होते हैं। Then we can see that the domination cues, आके हाथ रख लेना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना, आर्म्स फोल्ड करके सर पे चढ़ना शुरू कर देना। You see, when you are standing, और लड़कों के साथ भी ये होता है। As I said, disclaimer में हम लोगों ने बात की थी कि सिर्फ females are not getting affected from this thing. The males are equally getting affected from this thing. ये सारे domination cues भी sexual harassment में आते हैं if they are damaging your sexual sense. Then we can see the following, जो घर तक छोड़ के आने की आदत है, अम्मा दही मंगवा लें, they are not going to get out. बट अगर घर तक छोड़ने की बात है तो बंदा घर के अंदर भी छोड़ा है अगर दूसरे बंदे के भाई और जो अब वो है ना वो जिंदा ना हो। The following is also coming in the category of sexual harassment. Social distancing, आपकी social limits हैं। कोविड-19 ने आपको 6 फुट का फासला सिखा दिया जो कि पूरी दुनिया में अब हर जगह पे स्टैंडर्डाइज तरीके से फॉलो हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी नोइंग दैट एट लीस्ट 1, 2, 3 हाफ ऑफ इट 3 फुट में खड़े होकर कोई भी बंदा आपसे बात कर सकता है until and unless कि आपको उसको बैंडेज नहीं करना है या आपको उसको कॉलर का बटन बंद नहीं करना है। एंड आई डोंट थिंक सो हम अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी कॉलर का बटन बंद करना चाहेंगे। इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग। सो apart from being in need, every person is supposed to stand with you on a distance. अभी हम लोग जब बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो lesser the distance is, more obvious some
body language cues are. There are some messages you're giving, and the basic messages of availability. So the more distance is there, the more you're giving them a message of being unavailable. You getting my point? Girls, dear daughters, you getting my point? Viji? And physical touch obviously instigated to self or others. Kuch log, they're itching and they're rushing and they're touching on their body parts. Times when they get in front of you, you're supposed to say, bhai, kariye. You do not have to just avoid it. Or if you have to avoid it and you do not feel like saying something, walk away. Walk out of that place. But do not stand there and, see like bananas. Do not just go like a dummy. React on that. Or definitely if some person is touching you, they are never allowed to do that. You have to make it sure. And in severe cases, khuda na khasta, in public level, we can see the assault or the attempt of assault. That is also been called the attempt of rape. ये भी हो सकता है. Okay, domestic level पे हम लोग देखते हैं कि जो sexual harassment है, that is related to actually incest. So there is incest क्या है? Incest का मतलब है कि आपकी फैमिली में से कोई भी बंदा, be from the parents, from the siblings, from the cousins, from your aunts and uncles, from your grandparents, from both sides, from the side of mother and from the side of father, whoever is trying to attempt something and they are from the family, that is an incest. Incest का जो लघु मानी है, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि कीड़े को हम कहते हैं कि कीड़ा जब किसी भी फ्रूट के या किसी भी ग्रेन के अंदर तक घुस जाता है और उसको अंदर से खाना शुरू कर देता है, अब कहने के लिए वो आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है, अगर आप उसे काटो तो वो अंदर से कीड़े वाला है. That is incest. The family members जब आपकी encroachment करके they reach to the level where they damage you, specifically through the sexual harassment, it's the incest. So we can see कि first blood relatives, especially blended families, जहाँ fathers हैं, step fathers हैं, mothers हैं, step mothers हैं, step father के भी बच्चे हैं, step mother के भी बच्चे हैं, वो सारे मिल गए. तो second marriage में, third marriage में जब हम लोग बात करते हैं, they are called blended families. Blended families में step siblings और step parents के साथ sexual harassment बहुत देखने को मिलती है. It can be on the second blood level, incest on the second blood level. इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके grandparents और आपके जो आंटी और अंकल वगैरह हैं, मामू, चचा, खाला, like जो आपके parents के siblings हैं, mother के या father के या आपके parents के parents हैं, they are the second blood relatives. Thirdly, we have the third blood incest, जिसमें हमारे पास बहनोई, दामाद, देवर, जेठ, you're getting what I'm saying? ठीक है? जो आपके marital spouse के भी आगे से second blood relatives हैं, वो आपके third blood relatives बन जाते हैं, साला वगैरह, साली वगैरह. तो in both genders, the third blood relatives का भी family incest आपको देखने में मिल सकता है. होता ये है कि अक्सर औकात आपको चीजें ना करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा होता है या अब्यूज अटेम्प्ट करने के बाद ब्लैकमेल किया जाता है. एज आई सेड, किसी को मत बताना बिकॉज वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी. सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कार्ड्स. इसके बाद एक और चीज जो हम लोग देख रहे होते हैं वो ये है कि स्नबिंग कर दी जाती है. बच्ची ने आके अम्मी को बताया, आई हैव डेल्ट दोज केसेस. बच्चे ने आके अब्बू को बताया, फादर मदर मेरे साथ ये हुआ है. बड़े बहन भाइयों को बताया मेरे साथ ये हुआ है. बेटा चुप कर जाओ, ये बात किसी से नहीं करते. बेटा तुम्हें गलत फहमी होगी. बेटा किसी को नहीं बताना. That snubbing is actually a platform, the gigantic, the massive, the most international platform you're giving to that abuser to act again and again and again. Then we can see the neglect to complain. आपने सुन ली. अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास एक मदर आई थी and I am not going to obviously name them, I'm going to drop anonymous. She said कि जब भी मेरी बच्ची बता रही थी मैं वॉशरूम में जाके रोती थी. Okay, then what? What you did for that? क्या किया आपने उसके लिए? सुन लिया, फील भी कर लिया, कुछ भी नहीं किया. That is neglect. स्नब नहीं किया, बच्चे को गलत नहीं कहा, लेकिन कुछ किया भी नहीं. That is neglect. ये भी हो रहा होता है. And that is also actually a harassment. And reverse persecution. तुमने देखा तुम कपड़े कैसे पहनती हो, तुम्हें जा जाके सलाम करती हो ना, तुम्हें पास जाके बैठती हो.
तुमने तो नंबर शेयर क्यों किया था, तुम्हें मैं समझाती थी ना इस तरह से ना करो। ओके, एज ए पेरेंट आपने ये कह भी दिया। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज टू टेक एन एक्शन, not just assassinate the character of that person who is already been victimized. And families में ये होता है। ये बात अगर आपको नहीं भी पता थी तो आज ये घर लेकर जाइए। So please, if somebody is coming to you and you have to talk to them and you have to listen to them, do not do that. No matter आपको बंदा अच्छा लगता है या नहीं, उस बंदे के मार्क्स के साथ आपके मार्क्स हमेशा कंपेयर होते रहे फैमिली में, it's completely fine. But if they are coming to you, if you do not like them, you do not feel like talking to them, you do not feel like taking responsibility, still do take responsibility because it's yours now. Next we can see that organizational level पे हमारे पास दो टाइप की टोटल होती हैं। हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स डिस्कस कर लिए हैं, हम उनकी तह में बार बार नहीं जाएंगे। एक टाइप की जो हमारे पास हरासमेंट है, दैट इज क्विड प्रो क्यू, दिस फॉर दैट, हम डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंडली हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, दिस फॉर दैट। हम लोग शुरू में पढ़ते थे टिट फॉर टैट, अपने मॉरल स्टडीज के ऊपर भी हम अपने जो क्लास वर्क का पेज था उस पर भी लिखते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। So exactly the same meaning has been given to it from the France, that if you are giving the sexual favors to your subordinate or your supervisor or your boss, they are all okay. They will give you all the promotions, they will give you a visible attachment quality, they will give you handsome salaries. कॉलेजेस में हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे बेचारे जो बेटे होते हैं उनको यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि सर जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स को तो बड़ा प्यार करते हैं, उनको मार्क्स भी दे देते हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी भी मिल जाती है, और हम देख रहे हैं हम उसी हाल में बैठे हुए हैं। सो क्विड प्रो क्यो यानी कि दिस फॉर दैट मीन्स द सेम, कि इफ यू आर making that person feel gratified, the sexual gratification or the romantic gratification you're giving to them, they are okay with you, they'll give you every single thing. And if you're not giving them, they will show you their reverse side. Organization level पे, institution level पे, चाहे वो education है, चाहे वो job है, you can see these things. The next thing is the hostile environment. Hostile environment में हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर तो आपने quid pro quo में क्या है कि favors दिए, आपको support मिल गई, आपने favor नहीं दिया, आपको support नहीं मिली। Hostile environment is actually the severe form, जिसमें if you are saying a no, then you are in a big trouble. And वो supervisor या वो job का जो boss है या जो आपकी highest authority है या आपके जो colleagues हैं, as I have already discussed, वो directly or indirectly आपको इस तरह से push करते हैं कि whether you just agree with them or you just leave the job. So the next person can come and they can make them in emotionally connection with. बहुत दफा ऐसा होता है, आपके दोस्त होते हैं, they are of same gender, they are of opposite gender, and every single thing is going very, very good. They are always listening to you. They are always giving you that side. They are always giving you that emotional support you need. But at the end of the day, there's some words. You know that somehow you have to be practically vigilant and should be having your limits. Do we all agree? ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपका consent ना होना, आपका vulnerability को पीछे की तरफ धकेलना by taking certain measures, पहले बंदे को पहले से आगाह कर देता है कि you are not the person to be messed with. वो किसी के साथ भी mess up कर सकते हैं, वो आपके साथ mess up नहीं कर सकते। क्यों? आपका consent नहीं है। देखो body language बहुत मैटर करती है। Next point is आपकी जब please carry on. Actually, the person sitting next, you can also come. You can throw it back. Their view what was before the workshop. We are going to get something out of the workshop. So, dear son, come here. You,
the one with a very good smile. He was all the time smiling and very active with his friend during the workshop. So I'm not going to ask your name, beta. I'm going to ask you one thing, that after having this whole workshop, like till now, what is one or two main points that come into your mind and you can delineate them, or you can just surpass them to the next people you're going to meet? मेरा नाम है गुलशेर नहीं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ तक आने के लिए ये चीज़ मैंने सीखी है। सबसे पहले कि जो मेन जो पार्ट है ना हमारा सीखने का, सेक्शुअल हैरेसमेंट, तो इसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ठीक है। और जो इसके अगेंस्ट होते हैं, जो विक्टिम हो जाते हैं, उनको कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए इस चीज़ के हवाले से, उन्हें अगेंस्ट बोलना चाहिए इस चीज़ के हवाले से। अगर चुप हो गए तो फिर वो विक्टिम बढ़ते रहेंगे इससे। And do you think there is something new you have learned from this workshop, or you already knew all of the part or all of the things you have listened earlier than that? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी सोशल वर्किंग करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से दूसरों को गाइड करता हूँ कि जो मेरे से छोटे हैं या अगर सीनियर भी हैं, मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि जो गलत चीज़ है वो गलत है, मैं उसके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता हूँ, फाइट करता हूँ। And by the profession you are a psychologist or not a psychologist? No. That was very nice to meet you. Please, we can have a clap for him. The next level. Have you learned anything new from this workshop, or what is your viewpoint about sexual harassment right now? मैंने इससे ये सीखा है कि इंसान बाज़ औक़ात इंसान के अपने से कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इंसान खुद किसी को उस चीज़ के लिए मजबूर कर देता है। इंसान को पता नहीं होता कि जिस तरह मैंने भी यहाँ पे कुछ सीखा कि बाज़ औक़ात इंसान के हालात से, इंसान की हरकत से इंसान इस तरह करता है, इंसान बहुत से गुनाह का इर्तिकाब करता है हिसाब से। तो इंसान को अपने आप को इंसान जब कंट्रोल करता है, यानी कि खुद किसी को बुरा कहना कि तुम बुरे हो, तुमने ये किया, तुम बुरे हो, और इससे हम अक्सर अपने से छोटों को ना इस चीज़ पे बहुत ख़राब कर देते हैं। उनको डांट के, उनको ये चीज़ करके, उन चीज़ को अवॉइड करके, ये चीज़ बहुत ख़राब है, इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। So conclusion में you learn two things कि एक तो we never know that when we are harassers, हमें उस चीज़ को देखनी चाहिए, and number two, snubbing के लिए you think you have to work more in your life. ठीक है, thank you very much. God bless you. Amazing today, or you have learned something new. Has been there additional new information? Yes, क्योंकि हमें ज़्यादातर हमें पता होता है कि क्या हरासमेंट है, मतलब इतना नॉलेज तो हमें अब आ गया है कि हमें पता होता है कि ये हरासमेंट हो रही है, और मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ तो ये सब कुछ पता था। लेकिन दूसरे लोगों को कैसे बताना कि आपके साथ हरासमेंट हो रही है, क्योंकि लोग माइंड कर जाते हैं। हम उनको बताने की कोशिश भी करते हैं, और यूजुअली बड़े ऐसा करते हैं कि तुम छोटी हो, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता। तो ये सीखा कि उनको किस तरीके से बताना है हमने, और अपने से छोटों को किस तरीके से बताना है, ये आज की वर्कशॉप है। Something new you have learned, or you want to share your summary with them? Yes, I learned some disorders about sexual harassment, but one thing I want to add if you give me permission. हम ये तो बताते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, लेकिन हम ये नहीं सिखाते या बताते कि हमने उसे ओवरकम कैसे करना है। हमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे बहुत से फीमेल्स हैं, क्या वो घर चल के अपनी फैमिली, अपने ब्रदर्स के साथ, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, उनसे डिस्कस करती हैं अपनी डेली रूटीन कि क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी में किया, क्या किसने क्या बात की, क्या हमने अपने बच्चों को, लड़कों को इतना स्पेस दी है कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ बाहर की हैं वो आकर हमसे शेयर करें। हम ये स्पेस नहीं देते। जब हम बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ मदर, हम ये स्पेस नहीं देंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट क्या, हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो हमें नहीं पता होता। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं हर किसी को पहले एक पॉइंट ये कहती हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली में ये स्टार्ट करें, अपने छोटे बहन भाई को स्पेस दें कि हमने कैसे अपनी रूटीन शेयर करनी है अपने भाइयों के साथ। क्यों हम लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ में कंसर्न हैं कि हम अपनी शॉपिंग करने के लिए अपने भाइयों के साथ नहीं जाते। फीमेल्स, बहुत ज़्यादा फीमेल्स ऐसी हैं वो अपने बॉय फ्रेंड्स और मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबली अपनी रूटीन को शेयर कर लेती हैं, नॉट अपने ब्रदर्स के साथ। वो स्पेशल शॉपिंग्स करने, गर्ल्स की प्राइवेट शॉपिंग करने वो भाइयों के साथ नहीं जाती। वाई? जब हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस चीज़ की एजुकेशन देंगे ही नहीं कि
कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने अपनी बहन की सेफ्टी जैसे आपको अजीज़ है, दूसरों की बहन की सेफ्टी भी अजीज़ है। हम उनको ये सिखाते ही नहीं हैं, और जब हम सिखाते ही नहीं हैं तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। That's really nice. That's really nice. So we'll just go with a short conclusion of what you have learned, and if there was something amazing for you in this workshop up till now, and what are you expecting after this workshop that will change your life as a person to save others? First of all, from here I learned the importance of word no. Like if we don't want to do anything, then we don't want to do it. Nobody needs to force us. And we should also teach our kids that there is no need to do anything if you are not comfortable in doing it. Like we should teach them that we are there for you. You don't need to worry about this. Or like I have my niece, my nephew. We always afraid if they are late for about 5 minutes. अगर वो बैठ जाते हैं तो हम एकदम से डर जाते हैं कि वो क्यों नहीं आया अभी तक। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम इधर ही हैं। कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है तो उनको कुछ भी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी, आपको किसी के टच कुछ भी अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको हमेशा फ़ौरन शेयर करना चाहिए, ठीक है। आपको पेरेंट्स को, आपके फैमिली को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, आपकी फूफा नाराज़ हो जाएगी, अंकल नाराज़ हो जाएगी, दादा नाराज़ हो। आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये बताएं तो कुछ भी आपसे इजीली शेयर कर सकें। ये ना कि अगर आपको उन्हें किसी ने, दादा ने, अंकल ने, मामू ने, किसी ने भी कुछ बोला है या उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं करते उनके साथ, तो आप उन्हें फोर्स करें, कुछ नहीं होता। आपको गलत लग रहा है, दादा है, मामू है, जो मतलब मेरी क्लास फेलो थी उसके साथ भी हुआ ऐसा कुछ। और ये है कि आप अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल फील करवाएं कि आपको वो उससे कुछ भी इजीली शेयर कर सकें। First stage then again take place, because at the third stage आपने reconcile कर लिया था। So जब आपने उसको it's okay का certificate दे दिया, how come they are going to feel that it's not okay? You yourself in the families, the sexual abuse is happening in the families. A lot of kind of harassments are happening in the families. Understand it. You, if you have any story, if you have any case you want to discuss, if there is anything you want to share, it will be completely confidential. You can just email me, I'll answer it, and I'll make it sure that you have a better lifespan, that you have the solution of your problem. And one thing, dear sons and daughters, at least I'm always here for you. Right? We'll just take 2 questions. If there is any question, please raise your hands so that the mic can just come to you. Is there any question? Please raise your hand. Okay. We have one candidate. मेरा नाम जवेद है और एमएससी में मेरा थीसिस भी सेक्सुअल हरासमेंट पर था, लेकिन उसकी पॉपुलेशन डिसेबल वुमेन जो है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि हमें सोसाइटी नॉर्म्स के ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, कि मतलब उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। सबसे बड़ा जो चीज़ आया था, मतलब डिसेबल वुमेन इस चीज़ के ऊपर पहले तो एग्री नहीं कर रही थी कि वो पर्सन एड्स पहले करके दें, क्योंकि उनका मेन पॉइंट यह था कि अगर हमारे घर वालों को इस बारे में पता चल गया कि मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही हूँ, तो हमारे घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें कहीं जो 2-3% हमें चांसेस मिलता है कि हम बाहर निकल कर पढ़ लें या कुछ ऐसे काम कर लें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें आएगी वो यहाँ पर आएगी। अब जब एमफिल के लिए जब मैं फैसलाबाद गई हूँ वहाँ पर, तो बिल्कुल छोटे-छोटे 5-6 हमारी यूनिवर्सिटी के मेन गेट के ऊपर 5-6 साल की बच्चियाँ मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर बेच रही हैं। तो अब एक दिन हम यूनिवर्सिटी, और उस टाइम के ऊपर जो ज़मीन आपके पैरों के नीचे से निकलती है ना, वो सिचुएशन। उसने पूछा उसको, बेटा वजह क्या है इस चीज़ की? जब हम रोज़ इस चीज़ से गुजरते, घर वालों ने, अम्मी ने कहा है कि जब आप घर वापस आए शाम को, तो आपके पास इतने पैसे लाजमी होने चाहिए, और सारा दिन गुजार कर कोई ये चीज़ें तो खरीदता नहीं, तो हमें वो पैसे घर लेकर जाए। इसलिए हमारी बच्चियों का कोई कसूर नहीं, उसमें उस मेंटालिटी का है कि जो माएँ आपको घर से निकाल रही हैं इस चीज़ के लिए। Jury will shortly answer it because we have to just go through the program. Firstly, बेटे देखो, जिस तरह से आज आप लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हो, हमें मीडिया कवरेज मिली है, ये क्यों है? ताकि इसी चीज़ को, अवेयरनेस को कॉमन किया जाए। So it's up to every single person who is listening through it, through the television or by in person sitting here, that they should be knowing when they have to acknowledge others to say a no and raise their voice. Secondly, अगर गवर्नमेंट इस प्रोस्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं भी कर सकती इस तरह से, तो एटलीस्ट एंड दे हैव टू टेक एन एक्शन. सो थैंक यू सो मच. With this thing, I have a lot of prayers for you. I have a lot of
very well wishes for you.